Welcome to our channel, everyone. And today I have a wonderful success story to share with you, which is of Smita, who's right here with us. And Smita is a wonderful person. She is an audiologist and a speech therapist. She's also learning many other things. And उनके साथ जब हम लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस किया फॉर 1 month, she changed very beautifully धीरे धीरे because she was the one जो who never hesitated to ask real questions, yeah, bring herself out as she is. And she never judged herself, yeah, criticized herself छोटे questions पूछने में भी. And she has created wonderful results for herself in health में, relationships mein, money mein, career mein. And the biggest thing is she was able to let go of something which she was holding for so long, and from there her journey and her manifestations become very, very powerful. So over to you, Smita. And before that, Smita se main jab bolu ki wo apne aap ko introduce kare with you all, before that, those who are coming for the first time on the channel, my name is Vaishu Bhargav and I am a law of attraction coach and a certified Ho'oponopono healer, also a best-selling author for this book, A Letter from Money, writing many more books. So just watch how Smita changed her life with law of attraction in just 1 month. So over to you, Smita. Please introduce yourself. हेलो मैम। हाय। माई सेल्फ स्मिता। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट हूँ और करेंटली मैं अभी वेस्ट बंगाल में रहती हूँ और मेरा खुद का क्लिनिक है। आई हैव 3 ब्रांचेस और मैं इसके साथ साथ एक और भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं जो लेटर ऑन में जैसे डिस्कस होगा मैं बताऊंगी। Okay, welcome, Smita. Thank you for accepting our invite to come and share your story, which can inspire so many people on our platform, those whoever is watching. तो आपको कब ऐसे लगा कि ये वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो 1-on-1 वाला जो हमारा था ग्रुप में, मतलब 1 month का जो हमारा एडवांस LOA लाइफस्टाइल प्रोग्राम था, वो ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा आपको कब आपने डिसाइड किया कि हाँ दिस इज द राइट मोमेंट? एक्चुअली मैम लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी चीजें हम लोग पास्ट को होल्ड करके रखते हैं। बट जब स्टार्टिंग मैंने सबसे पहले मितेश सर का ज्वाइन किया था, सो मेरी मुलाकात वहीं पर हुई थी आपसे। और फिर मैंने सोचा कि नहीं एक बार मैं, क्योंकि मितेश सर आपके बारे में बहुत तारीफ करते थे एंड और आपके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो हम लोग अक्सर होते हैं ना जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, जो काफी मैनिफेस्टेशन क्वीन बोल सकते हैं जिनको, तो उनके साथ 1-to-1 हम लोग इंटरेक्ट करें। और तो मैंने सोचा नहीं अब मैं आपका ज्वाइन करूंगी। देन आफ्टर आई डिसाइडेड कि नहीं मैं सबसे पहले आपका 1-to-1 सेशन जो ग्रुप सेशन हम लोग ने किया था फॉर 1 month, उस टाइम मैंने ये थिंकिंग किया था कि मैं ज्वाइन करूंगी। नितेश सर का मैं कर रही थी, साथ में मैंने आपका भी ज्वाइन किया था। मुझे वहां से भी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, बट मैं एक प्रॉपर गाइड चाह रही थी जो एनी टाइम मेरे लिए अवेलेबल मौजूद हो। सो इस वजह से फिर मैंने आपका 1-to-1 सेशन ज्वाइन किया था। Wonderful, wonderful. Thank you for giving us इतना सारा डिटेल में डिस्क्रिप्शन. Thank you so much. While you were joining this program, was it difficult for you financially? मतलब कि easy था join करना for you? मैम लाइक इट्स नॉट दैट मच कॉस्ट एक्सपेक्ट, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं था कि मेरे लिए डिफिकल्ट हो ये ज्वाइन करना, बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमन। तो उतना मैं अर्न करती हूँ कि मैं मतलब जो कोर्स है आराम से ज्वाइन कर सकूं, और आपकी चार्जेस भी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो मेरे लिए काफी इजी था ये कोर्स ज्वाइन करना। Thank you so much. And the best thing that you said is कि we are learning from different coaches, but somewhere those who are at a very higher level right now, they are not able to talk one-on-one. जैसे आपने बोला कि आपको मुझसे one-on-one बात करने को मिल रहा था, that was the most important thing for you. So thank you, and thank you for all the wonderful compliments that you gave me. I was not knowing that you think about me like that. तो जब आपने ज्वाइन किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफस्टाइल प्रैक्टिस, हमने उसको नाम दिया था कि लेट्स गिव दिस नेम, आई कीप ऑन चेंजिंग नेम। तो आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी और जो प्रैक्टिस करने का तरीका था वो कैसे चेंज हुआ, एंड आपके क्या रिजल्ट आना चालू हुए? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना
चाहूंगी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी चीजों को लेकर। आई एम रियली इनकंसिस्टेंट बिकॉज ऑफ माय वर्किंग शेड्यूल एंड ऑल। मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं हो पाती थी एंड बहुत सारी पास्ट मेमोरीज थी जो मेरे माइंड में चल रही थी। और मेरे लाइफ का कुछ ऐसा पार्ट था जिस टाइम मैं बहुत डिप्रेस्ड थी। और मुझे लगा कि ऐसा हम लोग को लगता है कि हम लोग सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। देन जब मैंने वन ऑन वन जब किया, जब ग्रुप सेशन किया, तो सबसे जो मेरे लिए सबसे पॉजिटिव थिंकिंग था कि मेरा मेरा माइंड काफी पॉजिटिव हो गया। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। जो आपका सेशन में एक था बैगेज क्लीनिंग, तो आई नो जब मैंने 2 दिन बैगेज क्लीनिंग किया था, देन थर्ड डेज मैंने आपको बोला था कि मेरे पास कुछ नहीं है क्लीनिंग करने के लिए, बिकॉज मैंने बहुत जल्दी वो चीज क्लीनिंग की। एंड लाइक मेरे लिए तो ये मिरेकल्स, ऐसे तो हमेशा रोज कुछ ना कुछ मिरेकल्स होते रहते हैं लाइफ में, जो लेकिन वो 1 मंथ का जो जर्नी था मेरे लिए। पहले भी मैं एलओए करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं एलओए नहीं फॉलो कर रही थी, बट आई एम नॉट कंसिस्टेंट। मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। मुझे रिजल्ट्स मिल रहे थे बट मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, बार बार निगेटिव हो जाती थी। बट ये 1 मंथ जो मैंने किया, इससे मैं काफी पॉजिटिव हुई और मैंने कंसिस्टेंट एलओए को पूरा फॉलो किया। येट नाउ मैं अभी तक उसको फॉलो कर रही हूँ Wow. एंड मुझे बहुत सारे मिरेकल्स मिले हैं। और क्योंकि मैं खुद भी एक होपोनोपो हीलिंग कोर्स कर चुकी हूँ, आई एम अ हीलर, और Yes. मैंने और भी कोर्सेज किए हैं एलओए के। Yes. सो अब मेरे लिए और ज्यादा आसान हो गया मैनिफेस्ट करना। इवन मैं अपने लिए नहीं, मैं दूसरों को भी दूसरों के लिए भी हेल्प कर पाती हूँ, उनके भी मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर पाती हूँ और उनको भी ट्रेंड कर पाती हूँ। तो लाइक ये Wow. सब सारी चेंजेस हुई 1 मंथ में, आपका कोर्स जो मैंने ज्वाइन किया था। ओके, और मुझे याद है कि स्मिता सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली करती थी सारी एक्टिविटीज, बिकॉज वो क्लिनिक भी जाती है, शी इज वर्किंग, तो ऑल्टरनेट डे शी वाज गोइंग टू क्लिनिक एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो कार में रहती थी और सब लोग अपने डायरी पेन में लिख रहे होते थे, तो वो बोलती थी मैं कार में रहूंगी, मैं कैसे करूंगी। देन आई सेड व्हाट्सएप ग्रुप पे करो, एंड शी यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि वो जब ट्रैवल कर रही है एंड द सेशन इज हैपनिंग, शी यूज्ड टू जॉइन फ्रॉम कार, और वो सारा लिख के भी शी यूज्ड टू सबमिट एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली। शी नेवर मिस्ड, अगर मिस किया भी 1-2 दिन तो उसने एक्टिविटी पूरा उस टाइम पे उन्होंने किया। सो वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज कंसिस्टेंट रहना इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसी से रिजल्ट मिलते हैं। यू आर नॉट रिपीटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन, तो रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे। एंड आपके टॉप 3 रिजल्ट्स क्या थे? बैगेज क्लीनिंग इज वाज द हाईलाइट एंड इट केम बिकॉज ऑफ यू। आपने बोला कि मतलब ऐसा ऐसा है, तो वी स्टार्टेड विद दैट, आई केम अप विद दैट आइडिया। उसके अलावा 3 अगर आपके से टॉप 3 रिजल्ट्स है जो आपको सबके साथ में आप यहाँ पर शेयर करना चाहोगे, व्हाट वर दोज रिजल्ट्स व्हिच यू मैनिफेस्टेड वेरी फास्ट ड्यूरिंग दैट 1 मंथ? सबसे पहला चीज है कि मैं बहुत डिप्रेशन में थी। लाइक समटाइम्स मुझे बीच में सुसाइडल टेंडेंसी भी कुछ कुछ आई थी। तो मेरा माइंड बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, और जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आप चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करते हो। तो थ्रू आउट द डे मैं बहुत पॉजिटिव रहती थी। फर्स्टली ये मेरा सबसे बड़ा मिरेकल था। एंड द सेकेंड थिंग, मेरा क्लिनिक का जो अर्निंग पार्ट था वो मेरा बहुत अच्छा होने लगा। अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। आई थिंक मैंने आपको बोला था कि मैंने एक अमाउंट रखा था क्लिनिक में कि मैं जब भी क्लिनिक जाऊं तो वो अमाउंट में उतना लेके आऊं, और वो मैं लेके आती थी। एंड रिलेशनशिप वाइज तो खैर मेरा रिलेशनशिप विथ माय हस्बैंड एंड ऑल बहुत अच्छा था, और वो और ज्यादा अब स्ट्रांग हो गया, पहले से और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। क्योंकि पहले मैं क्या थी, छोटी छोटी बातों पे मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करती थी। अभी मैं बहुत कूल रहती हूँ। मुझे अगर कोई कुछ निगेटिव भी बोल रहा है ना, तो मैं उसको पॉजिटिव टुवर्ड्स लेती हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रहे। जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं होपोनो को स्टार्ट कर देती हूँ। मैं सबसे पहले अपने आप को क्लीनिंग करती हूँ, और कुछ पास्ट की जो मेमोरीज थी वो भी मैंने क्लीनिंग की, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा बैगेज थी, एज आई डिस्कस विथ यू। सो वो सब मैंने क्लियर किया। और आज जो स्मिता और जो प्रीवियस स्मिता थी, दे बोथ आर डिफरेंट। मेरे खुद जो साथ में लोग हैं वो बोलते हैं कि यू आर टोटली चेंज, तुम पहले से बहुत चेंज हो गई। पहले तुम इतना गुस्सा करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आई गिव 100%, तो मुझे भी तो 100% चाहिए। बट नाउ एक्सपेक्टेशन नहीं है ऐसा कुछ भी, बिकॉज मैंने अपने आप को क्लीनिंग किया है। ठीक है, बिकॉज आई एम क्लीनिंग फ्रॉम इनसाइड। तो अभी मुझे बाहर के लोगों से उतना टेंशन नहीं होता, उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। मैं बहुत काम रहती हूँ। तो और हेल्थ, या पहला मेरा क्या था, हाँ वेट, मेरा 50 kg वेट था।
दैट इज अंडरवेट अकॉर्डिंग टू माय BMI, जो मेरे डाइटिशियन से मैंने कंसल्ट किया। सो मैंने एक टारगेट बनाया था कि मुझे 55 kg वेट अचीव करना है। एंड यू नो व्हाट, मेरा अभी 55 kg वेट है। जब आई थिंक 2 मंथ पहले जो मेरा 50, वो भी अभी कंसिस्टेंट है। और उसके लिए मैंने एक्शन भी लिया। लाइक पहले मैं उतना वॉक नहीं करती थी, अनहेल्दी खाना खाती थी। अभी मैं बिल्कुल हेल्दी खाना खाती हूँ, वॉक करती हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी स्किन पहले से बहुत ज्यादा ग्लो मैंने आपको बताया भी था ये बात, और आपने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था इसके लिए। सो काफी कुछ चेंजिंग आया है अर्निंग पार्ट में भी। एंड हाँ, मैं बहुत दिन से अपनी क्लिनिक के लिए नया जगह ढूंढ रही थी। लाइक आई वांट टू शिफ्ट माय क्लिनिक टू अदर प्लेस। सो वो जगह भी मुझे मिली, और जहां मुझे चाहिए था वहां भी वही मिला। और बहुत अच्छे एरिया, मतलब लाइक इट्स लाइक 1000 स्क्वायर फीट में मुझे मिला है, जहां मैं बहुत अच्छे से अपना क्लिनिक बना सकती हूँ। सो ऑब्वियस, और छोटी छोटी मेडिकल्स तो रोज होती है मेरी लाइफ में। वाह, अमेजिंग। और आप डिप्रेशन में कितने टाइम से थे स्मिता? वुड यू लाइक टू शेयर? लाइक मतलब वो एकदम वैसा डिप्रेशन नहीं था, आई नो, क्लिनिकली, बट हाँ, हम अंदर से बहुत परेशान रहते हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। तो कितने टाइम से वो चल रहा था? लाइक आई थिंक इट्स 2 years। जब मेरी माँ की ऑल ऑफ द सडन डेथ हुई थी, हम्म। और बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, इसकी वजह से मैं काफी डिप्रेस्ड हो गई थी। बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं चीजें अच्छी करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं 100% दे रही हूँ, बट मेरे साथ वैसा हो नहीं रहा है। लाइक हेल्थ वाइज, कैरियर वाइज, मेरा क्लिनिक भी काफी डाउन हो गया, मेरा हेल्थ भी काफी डाउन हो गया। मतलब सब लोग से मैं बहुत इरिटेशन, मेरा रिलेशनशिप भी थोड़ा डाउन हुआ। तो ये सब चीजें, प्रॉब्लम्स मेरे साथ आने लगी थी। बट नाउ सब अपने जगह पे है, एंड आई एम हैप्पी विथ माय लाइफ। ओके, एंड आई रिमेम्बर वन थिंग, जब आपने ये सारे प्रैक्टिसेस चालू किए थे, आपने चक्रा क्लिनिक भी चालू कर दिया था। यस। एंड आई टोल्ड यू, अगर आप कुछ नया चीज चालू करते हो तो चैलेंजेस आएंगे, और आपके क्लिनिक में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट दैट? हाँ मैम, मेरे क्लिनिक में उस टाइम आई थिंक कुछ डॉक्टर्स को लेकर प्रॉब्लम्स हुई थी। आपके कोई एम्प्लॉय थे जो चले गए थे हाँ विदाउट हाँ हाँ, नोटिस? लाइक यस मैम। मेरा एक एम्प्लॉय था जो ज्वाइन किया था, और आफ्टर 6 मंथ वो बिना बोले चला गया। एंड आई, यस मैम, वो तो मैंने बताया नहीं, तो सबसे बड़ा मेरेकल था, सॉरी। मैंने उसको 2 लाख रुपीज दिए थे, क्योंकि हाँ, उसे बहुत नीड थी, एंड वो मेरे नोन था। तो हाँ। मैंने उसको 2 लाख रुपीज दिए थे। एंड ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ कि वो क्लिनिक छोड़ के चला गया, बिना बोले, बिना कुछ किए। कुछ प्रॉब्लम्स बता के कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स है, और मैंने 2 लाख रुपीज भी उसके पास थे। सो मुझे बस टेंशन, क्योंकि स्टाफ तो मुझे नए मिल जाएंगे, बट मुझे टेंशन उस 2 लाख रुपीज की थी। तो मैंने होपनोपो स्टार्ट किया। वो जिस दिन गया है, उसके दूसरे दिन ही उसने मुझे आई थिंक 1 लाख करीब रिटर्न किया। देन उसके दूसरे 2 दिन के बाद मुझे रेस्ट अमाउंट उसने पूरे रिटर्न किए। वाओ, मैंने वाओ। सिर्फ क्लीनिंग की, अपने अपने जब भी मैं क्लिनिक जाती थी, अपने सारे क्लिनिक का क्लीनिंग करती थी, अपना क्लीनिंग करती थी, और उस स्टाफ के लिए भी मैं क्लीनिंग करती थी। वाओ, आई रिमेम्बर दैट वाज ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से बहुत सारे मिरेकल्स मिरेकल्स हाँ। आ रहे थे, एंड एकदम जो ढाम करके एक और ड्रॉप भी हो दैट गया। टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब लाइक मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी। बिकॉज मेरा जो डिस्टेंस है क्लिनिक का, वो काफी डिस्टेंस में, लाइक 2.5 आवर जर्नी है वो। सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं रोज रेगुलर वहां पे जाऊं। हाँ, ये भी एक मिरेकल है। और उसके बाद मुझे नया स्टाफ चाहिए था, मैं काफी सर्च कर रही थी, उसके लिए भी मैंने होपोनोपो किया। और नाउ अभी मेरे पास जो मेरे ऑडियोलॉजिस्ट जो स्टाफ है, वो बहुत ही अच्छा मुझे मिला है। एंड ही इज वेरी ट्रस्टवर्दी, और बहुत अच्छे से मेरे क्लिनिक को रन कर रहे हैं। वाओ, तो आई थिंक जो होता है वो कांग्रेचुलेशन। अच्छे के लिए ही होता है। यूनिवर्स हमें कुछ अच्छे के लिए कुछ करते हैं। सो जैसे हम बोलते हैं कि दिस इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफस्टाइल प्रोग्राम, तो वो कितना सही है? क्या वो आपकी लाइफस्टाइल बन पाया इवन आफ्टर यू लेफ्ट? लाइक 1 मंथ आपने हमारे साथ में प्रैक्टिस किया, बट इट इज सेड लाइक 21 डेज आप कुछ प्रैक्टिस करते हो तो आपकी आदत बन जाती है। तो क्या अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी आदत बन गया है? वाज इट दैट प्रैक्टिकल? लाइक मुझे लगता है बहुत सारे लोग क्या होते, लॉजिकल होते हैं। मैं भी पहले बहुत लॉजिकल थी, बट मैंने सीक्रेट बुक पढ़ी थी बहुत पहले, लेकिन मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। बट मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर। एक बार मैंने एलओए, ऑलरेडी लाइफ में हम लोग सब यूज करते हैं, बट वी डोंट नो कि ये एलओए है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। मैंने भी अपनी लाइफ में यूज किया था, व्हेन आई एम इन कॉलेज, व्हेन आई वाज इन कॉलेज लाइफ। सो मैंने, मेरे और मेरे हस्बैंड की लव मैरिज है।
सो मुझे मालूम था कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। सो उस टाइम मैं नहीं जानती थी ये एलओए क्या होता है। तो मैंने छोटे-छोटे चीट में मैं क्या फ्यूचर में चाहती हूँ उनके साथ, मैंने सब लिख के उनको गिफ्ट किया था। एंड आफ्टर मैरिज जब मैंने वो चीज़ खोल के देखा, हाल्फ ऑफ देम वो मेरा मैनिफेस्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज जो है वो मैनिफेस्ट हुआ। देन मैंने ये भी उसमें चीट में बनाया था, लाइक मैंने क्लिनिक की फोटो बनाई थी, हम दोनों की फोटो ऐसे करके बनाई थी, एक लड़की एंड लड़के की। तो आए अभी मेरे पास हम लोग का 3 क्लिनिक है और अभी हम लोग और भी क्लिनिक एस्टेब्लिश करने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीजें मैंने डाली थी जो अब धीरे-धीरे मैनिफेस्ट हो रही। तो जब मैंने उसको खोल के देखा पेपर को, तो मुझे लगा अरे ये तो मैं बहुत पहले यूज़ कर चुकी थी और अभी मैं इस चीज़ का कोर्स कर रही हूँ। तो लाइक हम लोग को पता नहीं रहता बट हम लोग यूज़ करते हैं उस चीज़ को। तो मैं यही कहूँगी कि मैंने 1 मंथ ज़रूर प्रैक्टिस की, बट अभी क्या हुआ क्योंकि मैं पहले से भी कर रही थी बट मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। आपका जब मैंने जॉइन किया तो मुझे कंसिस्टेंसी आ गई। अभी क्या है मैं रेगुलर करती हूँ, लाइक मेरा सबसे पहला मॉर्निंग रूटीन होता है ग्रैटिट्यूड करना, जो मैं कभी नहीं भूलती। मैं आज भी करती हूँ, वाटर बॉटल टेक्निक मैं करती हूँ और आपका सबसे वंडरफुल दैट मिरर टेक्निक, क्योंकि मेरे लिए रोज अफर्मेशन इतना बोलना मुझे बहुत बोरिंग लगता था। तो मैं मिरर टेक्निक मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं रेगुलर करती हूँ। और लाइक थ्रू आउट द डे मैं पॉजिटिव रहती हूँ। जब भी मुझे ऐसा नेगेटिव रहता है आई जस्ट चैंट होपो। ये मेरा वाओ रूटीन वाओ रहता है। स्मिता, सो और इंस्पायरिंग। मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ मैम, शायद मैंने आपके साथ भी शेयर की थी कि वन ऑफ माय हस्बैंड कलीग जो उनके साथ काम करते हैं, उनका बहुत सारा कर्ज था, बहुत सारी उन्होंने शायद एक बार बात भी की थी जब हम लोग सेशन में थे, राइट? सो उनकी लाइफ में बहुत चेंज आया है। मैंने सिर्फ उनको यही बोला कि इतना कंप्लेन मत करो गॉड के लिए, जस्ट गॉड को थैंक यू बोलो, व्हाटएवर आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलो। और वो अभी रोज ग्रेटिट्यूड करते हैं, उनका आधा से ज्यादा कर्ज सब चला गया और उनको नए नए काम भी मिल रहे हैं। एंड ही इज लाइक कि वो मुझे जब भी मेरे से बात होती है, मेरे घर आते हैं, वो बोलते हैं थैंक यू स्मिता दी, आपने मुझे बहुत अच्छा बताया, मतलब मेरी लाइफ चेंज हो गई Wow, Smita, wow, congratulations. Not only learning, but applying yourself and teaching others to apply in their life. And gratitude practice is the highlight, I know. है। और जो miracle sharing हमने चालू किया था, so that your focus shifted on miracles. And I remember you used to share miracles every single day. और आप जैसे बोल रहे हो, छोटे छोटे miracles तो रोज होते रहते हैं, but हम लोग उसको notice नहीं करते। नोटिस नहीं करा। Yes, तो जब आपने नोटिस करना चालू किया तो वो बड़े miracles भी आपको दिखने लग गए। So, यस। what would you say to people who are अभी भी deciding कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए law of attraction में, मतलब वन ऐसे group sessions की जरूरत है कि जिस तरह questions वगैरह पूछ सके, तो is it worth or not for you? मैं बस एक ही चीज बोलूंगी, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, थोड़ा मैजिक भी देखो। मैं यही बोलूंगी कि ज्वाइन, जब तक ज्वाइन नहीं करोगे पता नहीं चलेगा क्या है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, बट जब मैंने ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि ये क्या चीज है। और आप मुझे आज देख सकते हो, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ। सो मैं तो यही बोलूंगी कि जस्ट ज्वाइन इट, डोंट थिंक सो मच, जस्ट ज्वाइन इट। ज्वाइन करो और अपने लाइफ में मैजिक ये करो। वाह, और कोई मैसेज आप सबके लिए देना चाहोगे, अगर कोई और मैसेज उसके अलावा? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, हमारे लाइफ में बहुत सारी पास्ट चीज होती है जो हम लोग होल्ड करके रखते हैं। हम लोग को ये लगता है कि अक्सर बहुत लोगों को लगता है कि ये हमारे साथ ही ऐसा होता है, हम अच्छे हैं, अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा होता है। वो हमारी इनर फीलिंग्स होती है ऐसा, ठीक है? तो जो एलओए है वो बहुत हद तक हेल्प करता है, हद तक क्या पूरी तरह से हेल्प करता है आपका जो इनर कैपेसिटी है उसको लाने के लिए। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, मुझे किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए, बट मैं करती सब कुछ अकेले ही थी। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा खुद का इनर कैपेसिटी है, आई कैन डू अलोन आल्सो। सो मैं यही बोलूंगी सबको, प्लीज ज्वाइन एलओए। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, एलओए लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कीजिए। हमारे पहले भी जो पूर्वज लोग थे, वो जब भी सुबह उठते थे तो सबसे पहले भगवान को ग्रेटिट्यूड करते थे। ये उनकी, ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी से इसको स्टार्ट किए, ये बहुत Yes. पहले से ही है। हमारे पूर्वज लोग भी जब सुबह उठते थे सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करते थे, अपने बड़ों का पैर छूते थे। वो क्या, वो ग्रेटिट्यूड ही है एक तरह से ना। तो व्हाई शुड नाउ
Yes, yes. Wow. Thank you. Thank you. Wonderful, Smita. And those who are watching and are interested to know more details about coming workshops or how to join, when to join, all the details are given in the description below. So you just click on that link and you'll find other descriptions or information, whatever is required. And subscribe the channel, like this video, and share it with any one person, at least those who are in need, because ऐसे ही बहुत सारे videos मुझे पता है कि एक video life किसी की भी change कर सकता है. मेरी life उससे change हुई, स्मिता की life, और भी जो भी आपने सारे लोगों को सुना होगा कभी ना कभी किसी के थ्रू उनकी लाइफ चेंज हुई है. सो मे बी यू कैन बिकम somebody जिसने किसी की लाइफ में चेंज लाया है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Thank you, Smita, for coming, and thank you for giving us this opportunity to serve you. And I'm so happy that you are so happy, healthy, and blessed at your place. I wish you all the best and love you all. Thank you. Thank you so much. Bye bye.